Size 1.3. Question 1 is, on his bank statement, Qasim had a balance of 1 million, no, sorry, 175,000, right? So he wrote one check of 45,790 and another for 112,921 rupees. So you need to find what is his current balance. All right. So very simple question. It is just they are, checking that, the keywords which are used for banking department. So we are going to solve exercise 1.3 of NBF book. So question 1 is, we will write down data first, whatever is given in the question. Let's write down in the data form. So the total balance was 175,000 rupees. Then the first check, you can say, first check was of rupees 45,790. It does not matter कि उसने किधर दिए हैं ये पैसे. 45,000 and this. Second check is 112,000 921 rupees. So we need to find out the current balance. So current balance would be, how to find current balance? What do you think? By subtracting the both values from the total balance. That's right, by subtracting the both values. Subtracting the So both values. So we'll simply write down like this: simply write it like this: 175,000 minus 45,790 minus 112,921. So, but can you calculate the answer for me? Yes, ma'am. So, bete, the answer is, I hope you are getting the same answer also, 16,289 rupees. Got Yes, the ma'am. same answer, Mahi? All right, bete. Yes, ma'am. Ji, bete. So, this is your answer for question number 1. Right? So, moving on to question number 2. Question number 2 is, let's read the statement and we will write down the data. Question 2 is, last week Wajid drove 283.4 kilometer on 16.2 liters of petrol. So the distance is 200.
So the distance is equal to 283.4 kilometers. That is the distance. And the amount of petrol was like for this distance, the petrol used was 16.2 liters. So the Wajid says that my average, so Wajid claims that the average is basically 1.75 kilometer per liter. ठीक है, किलोमीटर पर लीटर मीन्स के ही इज जस्ट क्लेमिंग दैट कि उसको 1 किलोमीटर गाड़ी चलाने के लिए कितना पेट्रोल चाहिए था, 1.75 लीटर. ठीक है, सो वी नीड टू टेल कि either his claim is reasonable. If yes, then we need to explain. If not, then we need to explain. So basically we need to find out कि is it the right value what he's claiming. So how do you think we are going to find out this value, kilometer per liter? By checking how much petrol is used, we will check by ourselves that how much petrol is used to travel 1 kilometer Yes, distance. that's right. So we will calculate the value and then we will compare that value with what Wajid is claiming. If the value is, the same, so then we will say that yes, his claim is right because we are also getting the same answer. But if we are getting a different answer, then we will say that Wajid claims is wrong. All right. So we will find out the average of petrol ratio. Okay. So we know that total distance is, this unit is also telling me kilometer per liter. Iska matlab I need to divide total kilometer with total petrol used. Okay. So please solve it. और इसकी यूनिट भी यही होगी, किलोमीटर पर लीटर. So use calculator to solve 283.4 divided by 16.2. What is the answer? 17.49. 17.49. So 17.49 को अगर हम एक राउंड ऑफ करें तो 17.5 kilometer per liter. So what do you think? Is Wajid claim correct or is there any problem with that? There's a problem with that. There is a problem. So he's, misunderstanding the place value of decimal. उसने 17.5 को 1.75 बना दिया है. So hence Wajid's claim is not correct. So you will write down at the end, hence Wajid's claim is incorrect. So it is 17.5 kilometer per liter instead of 1.75. So whenever there is a one word problem, beta, you need to remember that in word problems we answer according to the question. ठीक है, हमने कैलकुलेशन की, फिर हमने उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली आंसर करना है. जैसे इस क्वेश्चन मैंने पूछा है कि is his answer reasonable, explain. So you will say कि Wajid's claim या Wajid's answer is not reasonable, yeah, it's incorrect and the value is this and this. ठीक है, so you need to answer just like the you need to answer the question given in the question statement. So we are going to do question number 3 now. So question number 3 is that Salma bought 3.2 yard of fabric for a total price of 139.2. So the fabric is, we'll write down the data quickly.
How much fabric she bought? She bought 3.2 yard. Yard is also a unit of length, all right? So fabric bought, then the price. Price is basically 139.2 rupees. This is the price. So how much did the fabric cost per yard? So आपने क्या पता करना है? आपने cost of fabric पता करनी है per yard. Cost of fabric per yard. So how you are going to do that? Divide the price by the yards. That's right. So total fabric and total price we are having. So to find out the fabric per yard, cost per yard लिख लें. So cost per yard, for that you need to divide the total cost with the number of yards. 139.2 divided by 3.2. So what would be the answer? जी बेटे, what is the answer? 43.5. 43.5 per yard. Rupees per yard. ठीक है? So this is the cost of 1 yard. ठीक है? So moving on to question number 4. Question number 4 is that Momina walks 3.5 kilometer per hour. ठीक है? So she took a 12-hour walk. How far did she walk? So the data of question number 4 is that kilometer per hour. So can you tell me what is this kilometer per hour? It's the unit Unit of what? Kilometer per hour. of speed. Of speed. So kilometer per hour is unit of speed. Meter per second, kilometer per hour. ये speed की unit है. So this is the speed with which he is walking. 3.5 kilometer per hour. ये उसकी speed है. So we know that she took a 12-hour walk. So we know the time. Time is 12 hours. And we need to find out how much distance he have covered while walking We with will, this multi- speed. we will So multiply the distance with the time. we will distance तो हमने find करना है ना. We Time. will apply the formula कि distance by time is basically equal to speed. ये हमने formula पढ़ा हुआ है ना. Speed is equal to distance by time. तभी तो speed की unit किलोमीटर पर आवर है. ठीक है? So distance is unknown. So आप time को यहाँ लेकर आएंगे. So basically distance is equal to, जब आप time को इस side पे लेकर आएंगे तो it will be multiplied speed into time. ठीक है? So 3.5 उसकी speed थी. She walked for 12 hours. So total distance कितना cover हुआ? 42 420 बनता है, and if you put back the decimal, so 42.0 या 42 कर लें, 42 kilometer. So how much he walked? He walked for 42 kilometers. ठीक है बेटे? Maheen and bete, is it clear till this point? Yes, ma'am. Yes, ma'am. All right, bete, we are going to do question number 5. Question number 5 is the hiking club went on 7-day trip. ठीक है? So the total days, कितने दिनों के ट्रिप के लिए वो लोग गए हैं? They have gone for 7 days. ठीक है? Each day they hiked between 5.5 and 7.5 miles. ठीक है?
सो रेंज अगर आप देखें कि रेंज कितनी है, सो रेंज आपके पास है, कितना डिस्टेंस उन्होंने कवर किया है, 5.5 से 7.5 किलोमीटर के बीच में। 5.5 से 7.7 किलोमीटर के बीच में डिस्टेंस वो रोज कवर करते रहे। ठीक है, सो you are going to find out, is it reasonable to assume that clubbing the days are, so let's write down, we are having basically four things we need to find out. पहले उन्होंने हमसे कहा है कि what do you think, कि is it reasonable that this statement less than 35 miles, उन्होंने कहा है कि इज इट रीजनेबल कि अगर कोई कहे कि इतने दिनों में उन्होंने 35 माइल्स से कम डिस्टेंस ट्रैवल किया। सो इस क्वेश्चन के लिए सबसे पहले आपने ये लॉजिक समझनी है कि इफ दैट हाइकिंग क्लब वेंट फॉर 7 days ट्रिप, सो ये मिनिमम रेंज के जब क्वेश्चन आते हैं ना, तो वी नीड टू फाइंड आउट द मिनिमम वैल्यू एंड द मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है, सो आई विल कैलकुलेट द मिनिमम डिस्टेंस, कितना कम से कम डिस्टेंस उन्होंने कवर किया, एंड द मैक्सिमम डिस्टेंस। whenever there is a question of range, आप हमेशा याद रखें, हम हमेशा दो चीजें फाइंड करते हैं कि मिनिमम वैल्यू कितनी हो सकती है और मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है। अब देखो मिनिमम वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे, सबसे मिनिमम जो डिस्टेंस उन्होंने हर रोज कवर किया है वो 5.5 है। सो आप 5.5 को अगर 7 से मल्टीप्लाई करें, सो यू विल फाइंड आउट द मिनिमम डिस्टेंस। ठीक है, और अगर आप इसी तरह 7.7 को 7 से कैलकुलेट करें, मल्टीप्लाई करें, तो आप इसका मैक्सिमम डिस्टेंस निकालें। इसको इस तरह समझे कि फॉर एग्जांपल उस हाइकिंग क्लब में एक एक बंदा है जिसने हर रोज 5.5 किलोमीटर कवर किया है, तो उसने सबसे कम डिस्टेंस कवर किया होगा, तो दैट्स व्हाई वी विल से दैट इज द मिनिमम डिस्टेंस। और अगर एक हाइकिंग क्लब का मेंबर है जो हर रोज 7.7 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करता रहा है, तो इसका मतलब है ये जो वैल्यू है दैट विल बी द मैक्सिमम वैल्यू। कैन यू टेल मी द आंसर्स ऑफ बोथ बेटे? Excuse me, ma'am. 38.5 किलोमीटर Ma'am, एंड दिस इज, जी बेटे? do we need to convert the units? नो नो, ऊपर रेंज में ओ किलोमीटर और नीचे सॉरी सॉरी, माइल्स था ये ना, सॉरी, ये किलोमीटर नहीं है, ये माइल्स है। क्वेश्चन में है ही माइल्स, मैंने हैबिचुअली डिस्टेंस की यूनिट चेंज कर दी है। क्वेश्चन में भी माइल्स है और यहाँ पर भी ये माइल्स है। ठीक है, वी विल नॉट चेंज द यूनिट, वी विल कीप इट एज इट इज। 7.7 इंटू 7.7 है, 7.5 है आई थिंक सो इन द क्वेश्चन, सॉरी माय बैड, मैम ये इट्स 7.5 है। 7.5 है। जी बेटा इट्स 7.5, आई हैव रिटन इट रॉन्ग, इट्स 7.5। सो ये आपके पास वैल्यू आती है 35 और कितना बन जाता है, 52.5 है ना, 52.5 52.5 miles. ठीक है, so the minimum distance a member can travel is 38.5 miles and the maximum distance, so अब आप देखो रेंज क्या है आपकी 7 दिन की, not for 1 day, so आपकी मिनिमम रेंज है 38.5 से मैक्सिमम वैल्यू कितनी है 52.5। इसका मतलब है सारे लोगों ने जो डिस्टेंस कवर किया है वो इन दो वैल्यूज के बीच में हो सकता है। ठीक है, इससे कम भी नहीं हो सकता और इससे ज्यादा भी नहीं हो सकता। ठीक है, आफ्टर कैलकुलेटिंग दिस नाउ वी आर एबल टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन। जैसे फर्स्ट पार्ट में उन्होंने कहा लेस देन 35 माइल्स, सो डू यू थिंक इज द डिस्टेंस कवर्ड इज लेस देन 35 माइल्स, इज इट रीजनेबल? उन्होंने क्वेश्चन में ये पूछा है कि आपने ये बताना है कि इज दिस पार्ट रीजनेबल, कि अगर कोई कहे कि one person has traveled less than 35 miles, so is it possible? no, ma'am.
No, it's not. So you will not, you will write down it's unreasonable. Yeah, it is not reasonable. ठीक है, क्वेश्चन में उन्होंने कहा is it reasonable, so you will say it's not reasonable because the minimum distance covered is 38.5 miles. I hope you are able to write it on your own. ठीक है, so because the minimum distance traveled is 38.5 miles, so it cannot be 35. सबसे जो स्लो बंदा था उसने भी 38.5 डिस्टेंस ट्रेवल किया. ठीक है, so B part of the same question is that between 35 and 55, between 35 and 55, so what do you think, is it reasonable? No, No. Why? because the maximum is 52.5, so how can someone reach more than it? That's right. And also the smallest is 38. So how can someone start with 35? So you will write again, it is not reasonable. ठीक है, अब आप इसकी रीजन क्या लिख सकते हैं, बिकॉज द मिनिमम वैल्यू एज वेल एज द मैक्सिमम वैल्यू both are out of the range. ठीक है, so you can write down like this on your own. ठीक है, C part is equally 55 miles, equally 55 miles. So is it? No, अच्छा बेटे, for this, you know, it is reasonable. It's not reasonable. Why? Because they are saying between 35 and 55 है ना, तो ये दोनों values इनके बीच में आ रही है. Like for example 35 और 55 के बीच में आ रहा है 40 miles. तो that is also a correct answer. So it's reasonable. और इसकी reason आप ये देंगे कि the because the ranges are coming in between them. ठीक है, इसकी रीजन आप क्या कहेंगे, बिकॉज द रेंज इज इन बिटवीन देम. अब आप देखें ना, जैसे कोई कहे रेंज 35 और 55 के बीच में, अगर कोई कहे 50 miles, so that will be a correct answer because 50 mile is between these two values. So for this question you will say it is reasonable because the range we have is in between them. ठीक है, so equally 55 miles is not reasonable because it's beyond. Actually, when there is a range question so you cannot say equal then because it's a range. Just in D part it's more than 55, more than 55 miles. So more than 55 miles is again wrong because 55 miles is ज़्यादा नहीं है ये, 52.5 is the last value, so this is also not reasonable. ठीक है, ये कैसे लॉजिक क्वेश्चन है, because it's a real world scenario, so we are having different types of questions. ठीक है, moving on to question number. Maheen bete, is it making sense to you also? Yes, ma'am. Okay bete, so question number 6 is that for a class party the student council purchased 42 balloons at, so I'm writing the data also. Total balloons which they have purchased are 42. ठीक है, they have purchased 42 balloons और उसकी प्राइस क्या थी, 1.85 each, 1.85 rupees each. ठीक है, so what is the total amount
student council paid? Such an easy question. So what will be the total amount? How you are 1.85 going to find? by 42. That's right. So this time you know the total value. Oh, sorry, you don't know the total amount, but you know the price of one piece. So total amount would be 42 multiplied by 1.85. So what would be the answer? Please calculate the answer and tell me with it. $42 into 1.85. 77.7. 77.7 और आप इसकी यूनिट क्या रखेंगे? रुपीस. ठीक है. So this amount is the amount student council is going to pay. अच्छा, for the first 6 questions, you know, the questions were very easy. So now from 7 onward, the questions are a bit, you know, you can say tricky, या फिर इनको थोड़ा समझने की जरूरत है, इनमें थोड़ी चैलेंज है. So we are going to start question number 7. अच्छा, question number 7 is, a group of friends made 4-yard long rectangular banner. They paid 3.75 per yard for the fabric and 9 rupees for the firm to go around the banner. ठीक है. So हम डेटा लिखना शुरू करते हैं. क्वेश्चन 7 का length of the banner is, so I'm writing length. किसकी लेंथ है? उस बैनर की लेंथ है. ठीक है. लेंथ ऑफ द बैनर इज 4 yards. 4 yards. ठीक है. So then what is given to us? Parameter is also given. So they are saying the parameter is 10 yard. Parameter of that rectangular yard, ये आपने याद रखना है. Sorry, rectangular banner है. एक banner है rectangular. इसकी लेंथ कितनी थी? 4 yard. और पैरामीटर टोटल कितना है हमारे पास? 10 yards. ठीक है. फिर हमें ये पता है कि जो कॉस्ट है फैब्रिक की वो कितनी है? कॉस्ट ऑफ फैब्रिक कितनी है? ये हमें गिवन है क्वेश्चन में. ठीक है. कॉस्ट ऑफ फैब्रिक इज 3.75 3.75 रुपीस पर यार्ड. ठीक है. और हमें ये भी पता है कि 9 रुपीस हमें किसके लिए देने हैं? टू फर्म अराउंड द बैनर. ठीक है. हमने फाइंड क्या करना है? हमने विड्थ फाइंड करनी है. तो यहाँ पर मैं लिख रही हूँ कॉस्ट ऑफ फर्म. ठीक है. उस बैनर के गिर्द इन्होंने एक फर्म लगानी है. उसकी कॉस्ट क्या है? 9 रुपीस पर 9 रुपीस. ठीक है. सो वी नीड टू फाइंड आउट विड्थ. इसमें तो कॉस्ट की जरूरत ही नहीं है, आई बिलीव. ये एक्स्ट्रा हमारे पास इंफॉर्मेशन है कॉस्ट की. अगर हमें सिर्फ लेंथ और पैरामीटर पता होता तो हम उससे विड्थ निकाल लेते. कैसे निकालेंगे? देखें, लेंथ इज 4. रेक्टेंगल की दोनों लेंथ्स 4 हैं और हमें विड्थ नहीं पता. सो लेट्स कॉल W. Let's use variable W for that. So the parameter is sum of, what is 14 parameter? yards. Sum of all 4 sides. ठीक है. सो अगर हम पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल लिखें तो पैरामीटर होता है 2 लेंथ
प्लस 2W। अब देखिए हमें लेंथ भी पता है और हमें पैरामीटर भी पता है, वी कैन सिंपली पुट द वैल्यूज। हमें पता है पैरामीटर इज 10 और हमें ये भी पता है कि एक जो साइड की लेंथ है दैट इज 4। सो वी विल जस्ट सिंपली पुट द वैल्यूज और हम इसको कैलकुलेट कर लेंगे। 2W हमारे पास कितना आता है, 10 माइनस 8, ये प्लस 8 बनता है, ऑन द अदर साइड इट विल बी माइनस 8। सो 2W इज 2 और W हमारे पास कितना आता है बेटे, 1। ठीक है, सो व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ banner or width of banner? So at the end you will write down, hence width of banner is 1 yard। ठीक है, व्हाट इज द यूनिट, यार्ड इज द यूनिट। अब देखिए ये इसमें एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है, ना हमें कॉस्ट ऑफ फैब्रिक रिक्वायर्ड थी, ना हमें ये रिक्वायर्ड था कॉस्ट ऑफ फर्म क्या है। ठीक है, इट इज जस्ट टू कंफ्यूज यू प्रोबेबली। तो ये इसके अलावा ही क्वेश्चन इजीली सॉल्वेबल। जी बेटे, इज इट क्लियर टिल दिस पॉइंट? Yes, ma'am. Okay bete, so next comes question number 8। Question number 8. So question number 8 is that a shoe factory has an asset of 2 million, 2 million, of which 3/5 is the capital and rest is the debt. So the total asset is basically, कंपनी के टोटल एसेट्स कितने हैं? 2 million. टोटल एसेट्स आर 2 million। 2 million, या फिर ये अगर आप इन पाकिस्तानी करेंसी कहें तो ये 20 लाख बन जाता है, 2 million rupees। ठीक है, अच्छा नाउ द फ्रैक्शन इज गिवन 3/5। 3/5 ऑफ द फ्रैक्शन इज कैपिटल और बाकी जो है वो डेट है। ठीक है, सो आपने कैपिटल कैसे निकालना है, व्हाट इज द कैपिटल एसेट? कैपिटल एसेट कैसे निकालेंगे? 3/5 ऑफ, ये The फ्रैक्शन value का जो total कॉन्सेप्ट है। assets. जी, कैपिटल एसेट्स कितने हैं उनके पास? 3/5 ऑफ द टोटल एसेट विच इज 2 million। 3.5 ऑफ 2 million, 6 zeros। ठीक है, तो अगर आप इसको सॉल्व करें तो ये आंसर क्या आता है बेटे? 3.5 into 2 million, 3/5 multiplied by 2 million। Please calculate the answer। जी, how much is the capital asset? How much? 5 4s are 20 और ये 1,200,000 ऐसे ही है, 1,200,000 रुपीज, ये उसका क्या है, कैपिटल का कैपिटल एसेट। ठीक है बेटे, इज इट मेकिंग सेंस क्या हाउ वी डिड दैट? 3.5 ऑफ करके हमने इसका आंसर निकाले। अब देखिए नाउ वी नीड टू फाइंड आउट हाउ मच इज द डेट एसेट। सो डेट एसेट निकालने के दो तरीके हैं। अगर 3/5 एसेट कैपिटल हैं तो डेफिनेटली 2/5 क्या होंगे? एक तरीका तो ये है कि अगर 3/5 कैपिटल एसेट है तो 2/5 क्या होगा? डेट एसेट। तो आप इस तरह निकाल सकते हैं कि 2/5 ऑफ
2 million. ठीक है हरीम, आर यू एबल टू अंडरस्टैंड दिस? और दूसरा तरीका क्या Yes. है? दूसरा तरीका क्या है कि हमने कैपिटल एसेट निकाल दिया, हमारे पास टोटल एसेट है, तो हम सिंपली सब्ट्रैक्शन कर दें। 22 मिलियन से हम क्या निकाल दें? 1,200,000। तो ये दूसरा तरीका भी हो सकता है, ठीक है, बट वी आर गोइंग टू यूज दिस मेथड। सो 2/5, देखिए 5 4s are 20 अगेन, तो ये 8 4 2s are 8 एंड विद 5 zeros 800,000 उसके पास क्या है? डेट एसेट है, ठीक है। So there are two ways to find this answer. One is that you directly just subtract it from the total asset, और दूसरा तरीका क्या है कि आप फ्रैक्शन यूज करने। 3/5 कैपिटल एसेट है, तो 2/5 क्या होगा? द रिमेनिंग फ्रैक्शन क्या होगा आपके पास? डेट एसेट होगा, ठीक है बेटे। अच्छा, मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 9. Question number 9 is a question of temperature conversion, or formula is given to you. Question number 9 is that world lowest temperature in the past 100 years was recorded to be. So if I write down the data, हमने क्या लिखना है? World lowest temperature ठीक है was recorded to be -89.2 centigrade at Vostok, Antarctica. ठीक है, on July 21, 1983. So we need to convert this temperature into two other temperature units. One is Fahrenheit and another is Kelvin. दोनों के formulas हमें given है, ठीक है। Lowest temperature क्या रिकॉर्ड हुआ हुआ है ये हमें given है। Lowest temperature is basically given in one unit, that is -89.2, very low temperature, -89.2 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, ये टेम्परेचर है। सो वी नीड टू कन्वर्ट इट इनटू फ़ारेनहाइट एज वेल एज इन केल्विन। सो फ़ारेनहाइट में कन्वर्जन का फॉर्मूला आपको गिवन है, इट्स नॉट वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन। द फॉर्मूला इज 9.9/5 डिग्री सेल्सियस प्लस 32, ये फॉर्मूला फ़ारेनहाइट में, ठीक है। टेम्परेचर की 3 यूनिट्स है, यू मे हैव लर्नड इट इन फिजिक्स ऑल्सो। सो वन इज सेल्सियस जो हम यूजुअली यूज करते हैं, अदर वन इज फ़ारेनहाइट। फ़ारेनहाइट अक्सर आपने देखा है थर्मोमीटर्स में लिखा होता है, सो दैट इज अ थर्मोमीटर यूनिट या फिर मेडिकल यूनिट जो हम यूज करते हैं। एंड द थर्ड इज केल्विन। केल्विन इज वेरी हाई यूनिट, ठीक है, तो फैक्ट्रीज में यूजुअली यूज होता है, जैसे आयरन और स्टील की फैक्ट्रीज होती हैं, उनमें बहुत हाई टेम्परेचर पे डिफरेंट जो मेटल्स हैं उनको मेल्ट किया जाता है, ठीक है। सो उन फैक्ट्रीज में ये टेम्परेचर यूज होता है केल्विन, ठीक है। सो फ़ारेनहाइट में हम वैल्यूज पुट कर देंगे सिंपल। सो 9 into 9 मल्टीप्लाई बाय -89.2, हमने सेल्सियस की जगह क्या पुट कर दिया? उसकी वैल्यू पुट कर दी है, डिवाइडेड बाय 5 प्लस 82, ठीक है। सो कैन यू टेल मी द आंसर बेटे? कैलकुलेटेड वैल्यू इस सब की, व्हाट इज द आंसर इन फ़ारेनहाइट? So 9, first of all, multiply 9 with 89.2. ये मेरे पास कितना आता है? 802.2 है ना हरीम? Yes, ma'am. तो बेटे नाउ Answer डिवाइड इट 7. विद, आंसर कितना आता है?
700 और नहीं नहीं 700 892। नहीं नहीं, आपने पहले 32 पहले ये ऐड तो नहीं कर दिया 32? नहीं, सॉरी, हाँ कर दिया 82। पहले नहीं ऐड, पहले आपने ना डिवाइड करना है। ठीक है ना, पहले ये पार्ट सॉल्व होगा ना, पहले यू नीड टू डिवाइड दिस। ओके, Divide 802.8 divided by like 5. negative 78.56। Why? How? पहले 9 को अंदर कैसे? मल्टीप्लाई किया, फिर डिवाइडेड बाय 5 और फिर 82 ऐड किया। 82 नहीं है, ये 32 है, शायद इसीलिए वो मिस्टेक आ, मैंने गलत लिख दिया था, इट्स 32। negative So ये 128.56। that's right, negative 128.56 Fahrenheit। ठीक है, -89.2 सेल्सियस जो है वो फ़ारेनहाइट में कितना है? 128.56 फ़ारेनहाइट। अब हमने इसी को फ़ारेनहाइट पे भी ये सर्कल होता है जस्ट लाइक इन सेल्सियस। ठीक है, सो अब हमने इसी टेम्परेचर को कन्वर्ट करना है इन केल्विन, और केल्विन का फॉर्मूला हमें गिवन है इन द क्वेश्चन। केल्विन इज इक्वल टू सेल्सियस प्लस 273, 273, सिंपल। So centigrade is minus 89.2, 89.2 plus 273। So Kelvin में ये यूनिट कितनी बन जाती है, कितना आंसर बन जाता है बेटे? 183.8। 183.8 केल्विन्स। ठीक है, केल्विन का यूनिट इज के, तो इतने केल्विन्स। ठीक है, the same temperature in 2 different units. So moving on to the last question of this exercise. So last question is, a company was penalized by the government for low quality production. If the company has 3 shareholders, तो कंपनी के 3 shareholders हैं, I'm writing the data. Question number 10 में company is having 3 shareholders. ठीक है, अच्छा अब ये आपने याद रखना है, when you are doing business in partnership, so जैसे प्रॉफिट डिवाइड होता है ना, उसी तरह लॉस भी डिवाइड होता है। ठीक है, कंपनी को आप यूं समझें कि पेनल्टी हुई है, कोई जुर्माना हुआ है, तो दैट मनी विल आल्सो बी, लॉस विल आल्सो बी डिस्ट्रीब्यूटेड। सो 3 हमारे पास, क्योंकि हमने हर एक का अलग अलग पेनल्टी निकालनी है, सो वी विल राइट डाउन द नेम्स आल्सो। हमारे पास 3 शेयर होल्डर्स हैं, फरा है और फिर मरियम है, एंड देन द लास्ट शेयर होल्डर इज तहरीन। ठीक है, वी हैव 3 शेयर होल्डर्स, और हमने इनका इनका शेयर की रेशो क्या है? 1:2:3। यानी इस रेशो को समझने के लिए इस तरह समझ लें कि अगर फरा ने 1 लाख इन्वेस्ट किया ना, तो मरियम ने 2 लाख इन्वेस्ट किया है और तहरीम ने 3 लाख इन्वेस्ट किया है। तो जिस तरह प्रॉफिट तहरीम को सबसे ज्यादा मिलेगा, फिर मरियम को मिलेगा, फिर फरा को मिलेगा, इसी तरह लॉस में भी यही होगा कि सबसे ज्यादा लॉस पे किसने करना होगा? तहरीम ने, बिकॉज उसकी इन्वेस्टमेंट सबसे ज्यादा है। ठीक है, सो अच्छा, अब नाउ वी नीड टू नो हाउ मच इज द अमाउंट ऑफ पेनल्टी। ठीक है, कितना जुर्माना हो गया? सो अमाउंट ऑफ पेनल्टी इज गिवन टू यू इन द क्वेश्चन। अमाउंट ऑफ पेनल्टी is equal to rupees 456,008, let me write it properly, 456,868.08
97 रुपीज। ठीक है, 456,868 रुपीज उसको टोटल पेनल्टी है। ठीक है, अच्छा सबसे पहले अब आपने क्या करना है, अब आपने 6 पार्ट्स में चाहे डिवाइड कर लें, एक पार्ट निकाल लें या फिर फ्रैक्शंस में निकाल लें। देखिए व्हाट विल बी द पेनल्टी फॉर पेनल्टी अमाउंट फॉर फरा। सो हमारे पास क्वेश्चन में वर्ड क्या यूज हुआ है, अमाउंट ऑफ पेनल्टी, फराज अमाउंट ऑफ पेनल्टी। ठीक है हरीम, आई एम राइटिंग अमाउंट ऑफ पी। ठीक है, पेनल्टी। अब देखिए फरा ने कितनी अमाउंट पे करनी है, उसका 1 पार्ट है। अच्छा इफ 1 पार्ट फरा का है तो टोटल पार्ट्स कितने हैं, इससे आपको क्या आइडिया हो रहा है कि अगर मैं इसको 3, फ्रैक्शन में लिखना चाहूँ, 1/3 क्यों, 6. 6, वेरी गुड। सो द टोटल पार्ट्स आर 6। चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, सबके 6 पार्ट्स होंगे और फरा विल गेट 1 पार्ट, मरियम विल गेट 2 पार्ट्स एंड तहरीम विल गेट 3 पार्ट्स। सो 1 आउट ऑफ 6 फरा की पेनल्टी है। किसका 1 आउट ऑफ 6? इस पेनल्टी The अमाउंट total का। amount of जी, तो बस ये इसमें एक ट्रिक है कि आपने याद रखना है कि फरा तीनों का जो अमाउंट है वो डिफरेंट है, दैट डिपेंड्स ऑन हाउ मच इन्वेस्टमेंट दे हैव मेड। सो 868.97, ये कैलकुलेटर पे इसी तरह पूरा लिखना पड़ेगा, एंड इट्स अ लॉन्ग नंबर। 456 456,868.97 को 6 से डिवाइड करके बताएं जरा हरी। $76,144.8283. 76,144.83। 8283. अच्छा 828 है ना, तो फिर हम उसको राउंड ऑफ करके 83 कर देते हैं। ठीक है, सो इतने रुपीस फरा का शेयर है, फरा ने इतनी इतनी पेमेंट करनी है। नाउ मरियम्स अमाउंट ऑफ पेनल्टी। सो देखिए मरियम की पेनल्टी क्या होगी, अब मुझे बताएं व्हाट विल बी द फ्रैक्शन। 2/6. 2/6, excellent, because she has paid 2 parts, she has invested 2 parts, so उसकी पेनल्टी भी उसी के बराबर होगी। ठीक है, 2/6 ऑफ दिस, सो जस्ट डबल दिस आंसर। अगर हम इसको इससे डिवाइड करें तो 76 ये आता है, इसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं हरीम, जो पिछला आंसर आया 26. 76,144। 1522152289.66. 15228966, पॉइंट Point कहाँ गया, 0.66. 0.66 रुपीस। ठीक है, दैट इज द पेनल्टी फॉर मरियम। एंड व्हाट वुड बी द पेनल्टी फॉर्म फॉर तहरीम, बिकॉज 3 से उसकी multiply. इन्वेस्टमेंट सबसे ज्यादा। 3 से मल्टीप्लाई इस आंसर को कर दें, हाँ जी। 26. 228434. 2284, ओहो एक मिनट, एक मिनट सॉरी, 2284 4 84. 448
Oh, 2284 34 34.49 49. 49 रुपीस। ठीक है, ये हमने कैसे निकाला? ये हमने 3/6 को मल्टीप्लाई बाय 456 और 868.97 से मल्टीप्लाई किया एंड वी गॉट दिस आंसर, राइट? So that was the last question of the exercise, right? Okay. So now we can quickly solve because we started the class 10 minutes late. So let's solve one or two more questions. I'm using another book क्योंकि मैं आज वर्ड प्रॉब्लम पर हमारा फोकस है कि वर्ड प्रॉब्लम हम करें. So let's solve few questions from Cantup. ठीक है, कैंटप Okay. में हमारे पास क्वेश्चन है, इट्स एक्सरसाइज 1.5. ठीक है, इसके देयर आर टोटल 14 क्वेश्चंस इस एक्सरसाइज के. ठीक है, सो आई एम चेंजिंग द रेफरेंस आल्सो. वी विल स्टार्ट सॉल्विंग फ्यू क्वेश्चंस. ठीक है, हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं, वी स्टिल हैव टाइम. सो I'm giving the reference on the top. We are going to do exercise 1.5 and we are going to do question number 1. ठीक है, question number 1 is a bookstore in Lahore started with 5,000 Urdu novels in the first month. So we will write down the data. Total novels, ये उसी तरह का क्वेश्चन, अगर आप देखें ना जिस तरह हमने अभी पहला क्वेश्चन किया था ना, इट वाज कि कितना बैलेंस बच गया है. ठीक है, ये भी उसी तरह का क्वेश्चन है, कितना बच गया है. सो टोटल बुक्स वर, जब उसने बिजनेस स्टार्ट किया तो दे हैड टोटल बुक्स इक्वल टू 500. उर्दू की बुक्स थी उनके पास. ठीक है, 500 बुक्स. अब हुआ क्या कि फर्स्ट मंथ में उन्होंने 3.3/5 बुक्स सोल्ड कर दी. सोल्ड इन फर्स्ट मंथ में कितनी कितनी बुक्स सोल्ड हुई? 3/5 sold in first month. ठीक है, सो वो हमारे गिवन है कि 3.3/5 बुक्स जो हैं वो सोल्ड है. उसके बाद हमें ये डाटा गिवन है कि इन द नेक्स्ट मंथ 1/4 ऑफ द बुक्स वर सोल्ड. 1/4 ऑफ नॉट द ओरिजिनल टोटल बुक्स बल्कि रिमेनिंग बुक्स. सो हाउ मच वर सोल्ड इन सेकेंड मंथ? अब ये इसमें जरा सा एक क्वेश्चन में ट्रिक है कि हाउ मेनी बुक्स वर सोल्ड इन सेकेंड मंथ. पहले 500 का 3/5 निकालेंगे, फिर जो रिमेनिंग वैल्यू होगी उसका 1/4 निकालेंगे. बिल्कुल ऐसे ही है, सोल्ड इन सेकेंड मंथ. ये बिल्कुल वैसे ही क्वेश्चन है जैसे उसमें था, इतना बैलेंस है, बाकी कितना बचा? 1/4 ऑफ रिमेनिंग बुक्स. सो ऐसे ही है बिल्कुल, जैसे आपने कहा कि हम रिमेनिंग बुक्स निकालेंगे, फिर हम उसका, और हमने फाइंड क्या करना है कि हाउ मच बुक्स आर लेफ्ट इन द शॉप. सो हमने लेफ्ट ओवर बुक्स निकालनी है, कितनी बुक्स बच गई हैं उन 500 बुक्स में से, ये हमने कैलकुलेट करना है. इजी पीजी, बस क्वेश्चन समझना है, वर्ड प्रॉब्लम को. और सो how many books are sold in first month? So just like you said, 3/5 of 30 3 by books. 5 of 3/5 500. of 500.
3 by 5 of 500 कितना है? 30. 30? नहीं 30 नहीं, 3 by 5 यानी कि समझो 300. कि 300. Now that makes sense. So 300 books were sold in the first month. ठीक है, 3 by 5 यानी कि 3 parts were sold. So 300 books were sold. So now how many are the remaining books? 300 में 1 by 4. 500 minus 300 तो कितनी बच गई? 200 books हमारे पास बच गई after first month. ठीक है, the remaining books are 200. Now how much were sold in second month? 75. How much were? इसको लिखेंगे कैसे? 1 by 4 of 1 by 4 300. of 300. 300 क्यों? नहीं ऑफ द रिमेनिंग बुक्स है ना बेटे, so remaining 200 है ना, 300 तो सेल हो गई इन द फर्स्ट मंथ. आर अच्छा. यू गेटिंग द क्वेश्चन? Yes. तो बाकी बुक्स हमारे पास कितनी रह गई हैं स्टोर में? 200 बुक्स रह गई हैं. उन 200 में से 1 by 4 सेल होनी है. तो हमारे पास इसका मतलब है सेकेंड मंथ में सिर्फ हमारे पास कितनी बुक्स सोल्ड हुई? 50. 50 बुक्स. सिर्फ 50 बुक्स सोल्ड हुई. they are asking you to find out the leftover books. अब कितनी रह गई हैं आपके पास स्टोर में? 150. बुक 150. ठीक है, ये बिल्कुल वैसे ही क्वेश्चन है जैसे क्वेश्चन 1 था, इजी पीजी, जस्ट द सब्ट्रैक्शंस. ठीक है, so the leftover books are 150. 150 बुक्स. ठीक है, अच्छा, let's see what second question is. Second question is again a question of in. अच्छा, ये जो first question है ना, या कैंट उसका एनबीएफ का फर्स्ट क्वेश्चन था, ये बेसिकली इट्स कैलकुलेशन, कितना बच गया कितना आया. So Harim, can we do the second question and then we will just finish? ठीक है, is it Yes, fine? ma'am. No problem. Okay बेटे, so question number 2 is again a same question, inventory का question है. इन्वेंट्री का मतलब है कि स्टॉक में क्या है. अच्छा, question is, I will share this question bank also. A supermarket in Islamabad had an initial inventory of 1500 kg of basmati rice. ठीक है, so initial inventory कितनी है राइस की? इन्वेंट्री का मतलब है कितना स्टॉक पड़ा था. ठीक है, इनिशियल इन्वेंट्री जैसे जैसे बैंक में होता है ना इनिशियल बैलेंस, इस तरह इन्वेंट्री में स्टोर्स में क्या होता है? इन्वेंट्री. ठीक है, इट्स लाइक स्पेसिफिक वर्ड. सो इन्वेंट्री है 1500 केजी. उनके पास कितने थे? 1500 केजी राइस उनके पास इन्वेंट्री में पड़े हुए थे. ठीक है, अब जी क्या हुआ? ड्यूरिंग रमजान इट वाज सोल्ड 9/10 ऑफ द स्टॉक. ठीक है, रमजान में क्या हुआ? 9/10 ऑफ द स्टॉक वाज सोल्ड. ठीक है, फिर क्या हुआ? रमजान के बाद दे रीस्टॉक 2/3 ऑफ द सोल्ड क्वांटिटी. ठीक है, और अब आपने बताना है कि हाउ मच इज द इन्वेंट्री नाउ. ठीक है, सो सेल, you will write down sale in Ramzan. So how much was the sale in Ramazan? They are saying okay, 99 out of 10. So you will say 9 out of 10 of 1500. So now what is 9 out of 10 of 1500? Can you find the answer? 150 multiplied by 9.
1350. That's right. 1350 हो गया ना हरीम? Yes, ma'am. अच्छा, सो नाउ व्हाट इज, आप देखिए हमारे पास जब इतनी सेल हो गई तो रिमेनिंग इन्वेंट्री या रिमेनिंग राइस कितने बच गए? कितने बच गए? 1500 थे, 1350 सेल हो गए, तो हाउ मच आर लेफ्ट? 250, 250 के 150? 150, 150. 150 kg, ठीक है। अब इतने बच गए स्टोर में। नाउ दे आर डूइंग अ रीस्टॉक। अच्छा, रीस्टॉक उन्होंने कैसे किया है? उन्होंने रीस्टॉक किया है 2/3 ऑफ सोल्ड स्टॉक। तो उन्होंने रीस्टॉक किया है। ये अब आपने 1350. की इनकी, हाँ जी, ये अब आपने देखना है कि उन्होंने रीस्टॉक कितना किया है। 2/3 ऑफ द सोल्ड क्वांटिटी। तो सोल्ड हमारे पास 1350 है, तो उससे इन्होंने रीस्टॉक की अमाउंट निकाली है। इसको कैलकुलेट करें, ये कितना आंसर आता है? थर्टीन फिफ्टी इंटू 2 900. डिवाइडेड बाई 900 kg। 900 kg उन्होंने रीस्टॉक किया। सो नाउ हाउ मच इज द, अब उन्होंने क्वेश्चन हमसे कैसे पूछा, हाउ मेनी केजी ऑफ राइस डू दे हैव नाउ? सो इन्वेंट्री नाउ 1050 kg. 1050 kg या स्टॉक नाउ, ठीक है। Okay. इन्वेंट्री या स्टॉक लिख लें, इन्वेंट्री नाउ या स्टॉक ऑफ राइस नाउ, क्योंकि आपने वर्ड प्रॉब्लम में थोड़ा सा ध्यान रखना होता है। टोटल स्टॉक हमारे पास कितना है? 900 प्लस 150, तो हमारे पास 150 kg राइस अब स्टोर में है, इन्वेंट्री में, ठीक है।